الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على رسول محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. آمین یا رب العالمین. یہ جو ہمارا آج تیسرا درس ہونے جا رہا ہے غزوہ فکری کے بارے میں، کہ جو اس وقت غزوہ فکری کا ہمیں سامنا ہے پوری دنیا کے اندر، عالم اسلام امت مسلمہ کو یہ سب سے بڑا فتنہ ہے اور سب سے بڑی آزمائش ہے. تو یہ جو اس غزوہ فکری کے اندر ایک تو یہ بے حیائی عام کرتے ہیں، اور دوسری چیز یہ کانفرنس بناتے ہیں اور سیمینار قائم کرتے ہیں، اور ان کا ٹائٹل جو ہوتا ہے وہ اسلام کا ہی ہوتا ہے. اس کا اسلام کے نام سے وہ ٹائٹل جو وہاں پر پوسٹر بنائے جاتے ہیں اور جو کانفرنس کی جاتی ہے اس کا نام بھی اسلامی ہوتا ہے، لیکن اس میں اسلام کے خلاف زہر ملا کر وہ ہمیں پیش کرتے ہیں. 1980 اور 1985 کے درمیان میکسکو کوپن ہیگن ایک شہر ہے، اس میں بیجنگ کانفرنس ہوئی، اور بیجنگ کانفرنس دوسری قاہرہ مصر میں ہوئی، اور اس کے بعد اسلامی جمہوریہ پاکستان میں بھی یہ کانفرنس ہوئی، جہاں پر 43,000 نو عمر لڑکیاں جو جوان ہو چکی تھی ان کو اس کام پر لگایا گیا کہ وہ ایڈورٹائز کریں، کنڈیوم ساتھ لے کر گھومیں، تاکہ مانع حمل سے لوگوں کو مطلب شریف عورتوں کو یہ سکھایا جائے کہ ادویات کیسے استعمال کرنی ہے، اگر کسی کو حمل ہے کہ اس سے بچنے کے لیے کیسے ہم نے کون کون سے حربے اختیار کرنے ہیں. اور وہ لڑکیاں تھیں جو یہ ایڈورٹائز کرتی تھی، وہ لڑکیاں تھیں 43,000 جو یہ تعلیم دیتی تھی. اور اس کے بعد جو ان کو حقوق نسواں کا دل فریب نعرہ دے کر ان کو معاشرے میں کھڑا کیا گیا اور اسلام کے اگینسٹ کھڑا کیا گیا. نام تو اسلام کا لیا گیا ان کانفرنس میں، لیکن آہستہ آہستہ یہ جو عورتیں ہیں معیشیت میں کود پڑی. عورتیں آج کل دفاتر میں، فیکٹریوں میں، کارخانوں میں عورتیں ہیں، ہوٹلوں میں عورتیں، ریستورانوں پر عورتیں، کلب جو ہیں وہاں پر عورتوں کا آنا جانا، ڈسکو اور ناچ گھر تب تک وہ ججتا ہی نہیں ہے جب تک اس میں عورتیں نہ ہوں. مارکیٹوں میں عورتیں، بازاروں میں عورتیں، سیاست کے اکھاڑوں میں عورتیں، اور سیر گاہوں پارکوں میں عورتیں، کھیل کے میدان میں عورتیں. آہستہ آہستہ یہ عورت جو ہے اس کو مرد کے دوش بدوش کھڑا کیا گیا، اور نام کیا دیا گیا؟ حقوق نسواں، عورتوں کے حقوق. بڑا ڈنڈورا پیٹا جاتا ہے کہ عورتوں کے حقوق مسلمانوں نے کھائے، یہ پردہ کرا رہے ہیں، عورتوں کو بند کر رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے جو بہت اچھی چال چلی جو کارگر ثابت ہوئی. اور یہ آپ کو یاد ہوگا پہلے درس میں نے آپ کو بتایا تھا، جب صلاح الدین ایوبی اس خیمے کے باہر سن رہے تھے کہ جو ان کا جنرل رچرڈ میرے خیال میں اس کا نام تھا، تو وہ جب اپنے جنرلوں کو سکھا رہا تھا کہ آپ ان کو عسکری بنیادوں پر نہیں، ان کو زیر نہیں کر سکتے، بلکہ ان کو فکری بنیادوں پر ان کو زیر کر سکتے ہیں. تو غزوہ فکری وہاں سے شروع ہوا. تو ان لوگوں نے یہ کہا کہ اس کو بہت ٹائم لگے گا، وقت بہت لگے گا. بولا وقت تو بہت لگے گا، لیکن
اس کا نتیجہ جو وہ اچھا ہی برآمد ہوگا۔ تو اس میں کیا کیا انہوں نے، اس میں 3 4 5 نقطے صاحب کتاب نے بتائے: آرائش، نمائش، جسم، جلوہ نمائی اور عریاں۔ پہلا نقطہ نیم عریاں لباس، یہ ان کو تعلیم دی جاتی، نیم عریاں ایسا پتلا لباس جس میں عورت کے باڈی کے سٹرکچر جو اعضاء دکھائی دے، جس سے اپوزٹ سیکس جو ہے، جو مرد ہے، وہ اس میں ابھار آئے، سیکس میں ابھار آئے، تاکہ وہ ایمان سے ڈگمگا کر اور اس کی جام و فریب میں آ جائے۔ نیم عریاں لباس پہلا، اور دوسرا سنگار کرنا، اور زیادہ تر یہاں پر سکھایا جاتا ہے سنگار کرنا۔ حالانکہ اسلام میں عورت کو سنگار کرنے کے لیے منع نہیں ہے، لیکن اس وقت سنگار کرنا ہے۔ ایک عورت کو حکم دیا گیا کہ جب وہ رات کو اپنے خاوند جب گھر میں آ جائے اس کے لیے وہ سنگار کرے گی، اور سنگار کر کے اس کو بازار نکلنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن انہوں نے کہا بازار ہو یا دفتر ہو کہیں بھی سنگار کر کے جاؤ، تاکہ یہ جو مرد ہیں ان کی طرف مائل ہو جائیں اور ان کا ایمان کمزور ہو جائے اور ہم اس فکری جنگ میں کامیاب ہو جائیں۔ تیسری چیز، مردوں کے ساتھ مل کر سوئمنگ کرنا، تیراکی، سوئمنگ کرنا مردوں کے ساتھ، عریاں سوئمنگ کرنا تالابوں میں۔ اور چوتھا، عریاں تصویریں اتارنا، فوٹو کھینچنا، عریاں۔ اور پانچواں، کلبوں اور ڈراماؤں میں کام کرنا، ناچ گھروں میں کام کرنا، فلموں میں عریاں کردار ادا کرنا، فلموں میں کردار ادا کرنا لیکن عریاں، کپڑوں کے بغیر۔ اس کی ایک مثال ہے تکبیر، ایک اخبار ہے 1996 میں، 19 دسمبر 1996، امریکی استانی، ایک استانی تھی، اس نے اپنے بچوں کو پڑھایا، چھوٹے بچوں کو پڑھایا اور خود سارے کپڑے اتار کر ان کو کلاس میں پڑھایا۔ تو پھر جب اس سے پوچھا گیا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، اس نے کہا کہ اس سے یہ زیادہ تعلیم کی طرف مائل ہو جائیں گے، یہ میری طرف زیادہ توجہ دیں گے اور یہ پڑھ سکتے ہیں، وہ پڑھیں گے خاک۔ تو وہ ان کے یہی غزوہ فکری کے یہ طریقے اور حربے ہیں جن کی وجہ سے ہمارے ایمان کو کمزور کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسری، اٹلی میں میسولینی جو تھی، اس کی پوتی نے اسمبلی میں ننگے ہو کر خطاب کیا، عریاں ہو کر خطاب کیا اور لوگوں سے ووٹ مانگے۔ تو یہ 2 مثالیں تھیں۔ اور یہ جو بن بیاہی ماؤں کی شرح، بن بیاہی ماؤں کی ابھی شادی نہیں ہوئی ہے لیکن مائیں بنی ہیں، مولانا مودودی رحمہ اللہ کی کتاب پردہ، اس میں نے آج سے کوئی 10-15 سال پہلے پڑھا ہے کہ مغرب میں امریکہ ہو، برطانیہ ہو، فرانس ہو، جرمنی ہو، قریباً 15 لاکھ عورتیں ایسی ہیں جن کی شادی ابھی نہیں ہوئی ہے لیکن مائیں بنی ہیں۔ 15 لاکھ بچے ایسے ہیں جن کو نہ ماں کا پتہ ہے نہ باپ کا پتہ ہے لیکن دنیا میں آ چکے ہیں اور بڑے بھی ہو چکے ہیں۔ وہ آج تک تو بڑے، وہ آج سے 15-20 سال پہلے جو ایسا ہوا، وہ آج 20-20 25-25 سال کے لڑکے ہوں گے، وہ جوان ہوں گے۔ وہ کیسے؟ شادی کے بغیر۔ اور وہاں پر یہ کوئی عیب نہیں، یہ کوئی عیب نہیں، شادی کے بغیر اگر کوئی بچہ پیدا کرے اس کو وہ عیب نہیں۔ یہاں پر اور اس کو لوگ شرم دلائیں گے، وہ پانی میں ڈوب کر مر جائے گی، پانی کی پیالی میں ڈوب کر مرے گی، لیکن وہاں پر کوئی آر نہیں۔ اگر اس نے شادی سے پہلے بچہ پیدا کیا کوئی پریشانی نہیں۔ اور وہی کلچر جو ہے، وہی کلچر اور تمدن وہ ہم پر تھوپنا چاہتے ہیں، مسلمان ملکوں کے اندر ایسی بے حیائی پھیلا کر اور اس باغیرت اور باحیا قوم کو بے حیا اور بے غیرت بنانا چاہتے ہیں۔ اور اس میں شرح جو ہے ہر ملک کی اس کتاب میں دی گئی ہے۔ بن بیاہی ماؤں کی شرح سویڈان میں 50%، یعنی کہ اگر سویڈان میں 1 لاکھ عورتیں ہیں، ان میں سے 50,000 عورتیں ہیں شادی کے بغیر مائیں بن چکی ہیں، ابھی شادی نہیں ہوئی ہے لیکن مائیں بن چکی ہیں۔ اور ڈنمارک میں 47% اور ناروے میں 46%، فرانس میں 31%، برطانیہ میں 32%، فن لینڈ میں 31%، امریکہ میں 30%، جس کا ڈنڈورا پیٹا جاتا ہے کہ وہ بڑے ترقی کر رہے ہیں۔
ऑस्ट्रेलिया में 27%, आयरलैंड में 20%, पुर्तगाल में 17%, जर्मनी में 15% और नीदरलैंड में 13%, बेल्जियम बर्ग में 13% और बेल्जियम में 13%, स्पेन में 11%। ये वही स्पेन है जहाँ पर एक वक्त मुसलमानों की खिलाफत के अंडर होता था स्पेन, ये वही स्पेन है। यहाँ पर 11%, यानी 1 लाख औरतों में से 11,000 औरतें ऐसी हैं जो शादी के बगैर माएँ बन चुकी हैं। इटली में 7% और स्विट्जरलैंड में 6% और यूनान 3%। यूनान और मिस्र रोमा सब मिट गए जहाँ से अब तक, मगर वह बाकी नामो निशान हमारा। जिसने कहा था अल्लामा इकबाल रहीमुल्लाह ने, यानी यूनान में 3% औरतें ऐसी हैं जो बिन ब्याही माएँ बन चुकी हैं। इस बेहयाई और इब्लीसी तूफान में जो मगरिब जो है ये जिनसी दरिंदों का जंगल बन चुका है। वहाँ पर कोई तमीज़ नहीं है, रिलेटिव है, मेरी कज़न है, ये मेरी बहन है, ये मेरी माँ है। हत्ता कि अल्लाह बचाए हम अपनी ज़बान पर नहीं लाना चाहते हैं, वो अपनी माँ के साथ भी बदकारी करते हैं। अब जो है ना बरतानिया, फ्रांस, अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड, जिसको हम मगरिब कहते हैं, मगरिबी तहज़ीब, इसी को आज का मॉडर्न मुसलमान जो कहता है कि इनने बहुत तरक्की की। उन्होंने यही तरक्की की कि इंसान औरत को एक ऊंचे मुकाम से उतार कर नीचे गटर में फेंक दिया, गंदी नाली की जीनत बना दिया। तो यही वो चाहते हैं कि हम तो बिगड़ चुके, हम तो लुट चुके, हम तो डूबे हैं सनम, लेकिन तुमको भी लेकर डूबेंगे। वो ये चाहते हैं कि तुम भी हमारे साथ आ जाओ, हम तो बेकार हो गए और तुम भी हो जाओ। जर्मनी में एक अखबार निकलता है, अमेरिकी जरीदा टाइम्स उसका नाम है, उसमें एक रिपोर्ट आई है। जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया, रोमानिया, हंगरी और बल्गारिया की बड़ी बड़ी नेशनल हाईवे जो हैं, बड़ी बड़ी सड़कें, उन पर ये नेशनल हाईवे जो है करीबन 1200 किलोमीटर है, 1200 किलोमीटर नेशनल हाईवे। उस पर कतार बांधकर ये औरतें, नौजवान लड़कियां खड़ी होती हैं और वो बदकारी करती हैं और लोगों को दावत देती हैं। ये उन मुल्कों की हालत है जिनको हम कहते हैं कि इन्होंने बहुत तरक्की की, जिनको हम कहते हैं ये तरक्की के आसमान की चोटी पर पहुंच गए। ऐसा नहीं है, लेकिन जब हम इनकी बैकग्राउंड बेसिक पॉइंट्स जब देखते हैं, उनको उनके माशरे में जब हम देखते हैं, उनका माशरा जब हम स्टडी करते हैं, वो तो जिनसी दरिंदों का जंगल बन चुका है। फाहिश लोग रहते हैं, वो इंसानियत से गिर चुके हैं। उसके बाद एक रिपोर्ट बरतानिया की मशहूर यूनिवर्सिटी जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, बहुत फख्र से कोई जो लोग वहाँ पर पढ़ते हैं फिर अपने आप को कहते हैं कि मैं तालीम याफ्ता, मैंने ऑक्सफोर्ड से पढ़ा है। और उस ऑक्सफोर्ड की 76% तालिबात, यानी 1 लाख में से 76,000 लड़कियों ने शादी के बगैर जिनसी ताल्लुक करने के हक में वोट दिया। शादी के बगैर जिनसी ताल्लुक कायम करने में उसके हक में वोट दिया 76%। और 51% तालिबात ने, लड़कियों ने इकरार किया कि यहाँ हम जब आई थी हम कुंवारी थी, लेकिन यहाँ आने के बाद, इस यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के बाद कुछ अरसे के बाद हम अब कुंवारियाँ नहीं रही। और 25% लड़कियों ने ये इकरार किया कि हम मानाए हमल गोलियाँ, टैबलेट्स खाते हैं जिनसे हमल साकित हो जाता है, उन्होंने इकरार किया। बरतानी अखबार एक्सप्रेस के मुताबिक हर साल 1 लाख लड़कियां हामिला हो जाती हैं। और कैसे? शादीशुदा नहीं, बगैर शादी के। दूसरा नुक्ता ये, हर तालिब इल्म को 3 साल के बाद स्कूल जाना, ये वहाँ का इसमें लिखा हुआ है मगरबी कल्चर में। और तीसरा, बरहना होकर गुस्ल करने की तरकीब वो सिखाया जाता है स्कूल में। यानी हम अगर बाथरूम में भी नहाते हैं तो कैसे नहाते हैं? कच्छा लगा कर नहाते हैं, हमें खुद से शर्म आती है। लेकिन वो ऐसे बेशर्म हो चुके हैं कि लड़कियों को भी बोलते हैं आप कपड़े उतार दो, लड़कों को भी, और कट्ठे स्विमिंग पूल में उनको बोलते हैं नहा लो। ये तालीम दी जाती है और वही तालीम हमें हमारे इस समाज में फैलाना चाहते हैं। खासकर उनका टारगेट जो है इस्लामी ममालिक हैं, क्योंकि इस्लामी ममालिक में अभी कम से कम 10-20% शर्म व हया मौजूद है और उस 10-20% शर्म व हया को भी ये ख़त्म करना चाहते हैं।
चौथा नुक्ता, बड़ी क्लासों में लड़के लड़कियां मुश्तरका स्विमिंग, इकट्ठे एक ही स्विमिंग पूल में। पांचवा नुक्ता, बच्चियों को, खासकर बच्चों को नहीं, बच्चियों को रात देर तक घर से बाहर रहने की ट्रेनिंग दी जाती है। और छठा पॉइंट, माँ बाप अगर एतराज करे, आप कहाँ थे, बेटे से पूछा या बेटी से पूछा, आप इतने देर कहाँ थे, तो वो उनको ये इजाज़त है, उनको ये हक है, कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दिया है कानून ने उनको कि वो पुलिस स्टेशन में फ़ोन करके अपने माँ बाप के खिलाफ FIR लॉन्च कर सकते हैं। और सातवां, और यही अमेरिका का हाल है, वहां पर 15 साल के 2 लड़कों ने एक लड़की का रेप किया, उसके साथ जबरन जिना किया, और उन्होंने उधर वहां के कानून ने क्या कहा, ये कम उम्र हैं, ये जिना करार नहीं दिया गया, बल्कि उनको छोड़ दिया गया, क्योंकि ये उम्र से कम है, 15 साल के। काम इतना बड़ा किया, काम इतना बड़ा किया, कांड इतना बड़ा किया, लेकिन उनने उस वहां के जज साहब ने कहा कि ये उम्र छोटी है, इनको पता नहीं है ये क्या है। अगर पता नहीं है, ये तो बालिग हो चुके, तभी तो इन्होंने एक लड़की का रेप किया, 2 लड़कों ने मिलकर रेप किया। अगर ये बालिग नहीं हुए होते तो फिर ये हरकत नहीं कर सकते थे, तो उनको छोड़ दिया गया। अमरीकी जरीदा एक माहनामा निकलता है महीने के बाद, सर्वे रिपोर्ट 1980 से 1985 के दरमियान शादी करने वाली खवातीन सिर्फ 4% हकीकी कवारियां थी, बाकी सब लड़कियों ने। एक सर्वे रिपोर्ट हुई, जिस तरह मर्दमशुमारी हम कहते हैं, आते हैं ना वो डिपार्टमेंट वाले, फिर पूछते हैं आपके बच्चे कितने, औरतें कितने। जब सर्वे की गई अमेरिका में, जब सर्वे की गई, 4% और लड़कियां जो कवारियां थी, उन्होंने कहा, हालांकि पूरी कवारियां लड़कियों से उनने रिपोर्ट ली, लेकिन उनमें से सिर्फ 4% औरतें जो लड़कियां जो हैं वो कवारियां निकली, बाकी सारी सब ने अपनी गौहरे अस्मत को खो चुकी थी। माँ बाप की, वहां की लड़कियां जो हैं बॉयफ्रेंड को नो नहीं कहती। अगर किसी कोई लड़का उनको मिलता है तो वो उसको बोलेगा तो आप क्या मेरी आप दोस्त बन सकती हो, तो वो उसको ना वो नहीं बोलती है, बल्कि बन जाती है। इतना बेहयाई का तूफान है वहां पर। दूसरी चीज, वहां पर खवातीन फौज में भर्ती होती हैं। एक खातून ने इकरार किया कि एक फौजी अफसर ने मेरे साथ बदसलूकी क्या, मैं उसके हौस की शिकार बन गई, यानी मेरे साथ उसने बलात्कार किया। एक खातून ने शिकायत की कि मेरी आबरू रेजी हुई, तो जब बड़े अफसर के पास ये बात पहुंची, उसने कहा कि भूल जाओ, ये भूल जाओ, कोई केस नहीं बना। यानी वहां इतने वो लोग गिर चुके हैं। चौथी चीज, एक लड़की ने वहां महफिल रक्स बोलते हैं, डांस के दौरान, डिस्को हॉल में रक्स के दौरान वो हामिला थी और उसने बच्चे को जन्म दे दिया। रक्स के दौरान पूरी महफिल में बच्चे को उठाकर कूड़ेदान में फेंक दिया और रक्स में फिर शामिल हो गई। ये है वहां का माशरा, जिस माशरे के हमारे खासकर हुक्मरान तबका या मॉडर्न मुसलमान जिस तबका जो इसका बड़ा मरूब हुआ है और इसके पीछे चल बोला, उनने बड़ी तरक्की की। मेरे भाई, हर एक चीज पैसा ही नहीं होती, पैसा ही हर चीज नहीं है। टाउन हॉल में, 5वां नुक्ता, टाउन हॉल में मुसलमानों की मौजूदगी में एक पादरी ने 2 लड़कियों की शादी कराई, लड़कियों की 2 लड़कियों का निकाह पढ़ाया। मुसलमान उस टाउन हॉल में मौजूद थे, उनके सामने उनकी मौजूदगी में लड़की और लड़की का निकाह पढ़ाया गया, और पढ़ाने वाला कौन था? पादरी। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक सेंट्रल कंप्यूटर के 10,000 लोगों का रिकॉर्ड मौजूद है जो बच्चों के साथ ज्यादतियां करते हैं, लड़कियों नहीं, लड़कों के साथ ज्यादतियां करते हैं। यह है वहां पर माहौल। 7वां, तारिक निस्मा की लीडर, जो इसकी हेड लीडर है, वर्ल्ड की लीडर पेट्रेशा उसका नाम है, इसने एतराफ़ किया कि मेरी घर वाले के अलावा, जो मेरा खामद है, उसके अलावा मेरे ताल्लुकात एक लड़की के साथ है, सेक्सुअल ताल्लुकात, जो मैं आपको ऐसे बताऊं, ज़्यादा खोल कर बताने की ज़रूरत नहीं है। जो काम मैं अपने घर वाले के साथ करती हूँ वो एक लड़की के साथ भी मेरा संबंध है। तो ये है वहाँ की मसावात मर्द जन,
जर्मनी, वॉइस ऑफ जर्मनी के मुताबिक मजदूरी में औरतों की तनासब 90% है, यानी ज़्यादा औरतें वहाँ पर काम करती हैं, लेकिन रिटायरमेंट के बाद औरतों को वहाँ पर पेंशन नहीं मिलती। ये जर्मनी का अखबार कह रहा है। और उनकी तनख्वाहों में भी फर्क है, एक ही काम पर लड़की भी है, उसी पर लड़का काम कर रहा है, लड़के को $5 मिलते हैं, लड़की को 4 ही मिलते हैं। ये है वहाँ का कानून। जर्मनी में आला ओहदे पर औरत है ही नहीं। ये जर्मनी का अखबार कह रहा है, जर्मनी के अखबार कह रहा है कि उसके बाद 40,000 औरतें घर छोड़कर भाग जाती हैं मर्दों के तशद्दुद से। इतना उनको तशद्दुद किया जाता है, तंग किया जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है, उनकी बेहुरमती की जाती है, वो तंग आकर घर छोड़ देती हैं। 40,000 हर साल। छठा नुक्ता, औरतें मर्जी का लिबास पहन नहीं सकती। एक एयर होस्टेस ने अपने सर को बताया कि मैं आज सर्दी है, मैं पजामा पहनूंगी, लेकिन उसको इजाजत नहीं मिली। बोला नहीं, वही मैंने स्कर्ट लगाकर आपने एयर होस्ट का काम करना। आजादी निस्वान, क्या फिर वो किताब लिखने वाला कुछ सवाल करता है, क्या मगरिब में इस बात की आज़ादी हासिल है कि औरत घर बैठे तनख्वाह हासिल करे? फिर खुद जवाब देता, बोला नहीं, ये इजाज़त नहीं है। क्या इस बात की आज़ादी है कि ट्रैफिक की मुखालफत करके गाड़ी चलाए? कोई इजाज़त नहीं। क्या एक औरत को बैंक लूटने की इजाज़त है? बोला नहीं है। अपनी मर्जी के कपड़े पहनने की इजाज़त है एक औरत को? बोला, फिर जवाब खुद ही देता है कि नहीं। फिर किस बात की आज़ादी है? सर आम बरहाना होना चाहे, नंगी होना चाहे तो वो हो सकती है। अपनी उरियां तस्वीरें उतारना और अखबार और जरीदों में उनको छपवाना चाहे, उसकी इजाज़त है। फिल्मों में उरियां अदाकारी करना चाहे तो कर सकती है। जिस मर्द के साथ चाहे जिना करना चाहे तो कर सकती है, ये इजाज़त है वहाँ पर। सारी ज़िंदगी औलाद पैदा न करना चाहे न करे। हमल, छठा नुक्ता, हमल साकित करवाना चाहे, यानी कि 120 दिन का हमल भी अगर हो, वो साकित करवाना चाहे, उसका घर वाला या उसके रिश्तेदार रिलेटिव कोई कुछ नहीं बोल सकते, वो उसकी अपनी मर्जी, उसको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। और वही तहफ़्फ़ुज़ हमारी औरतों को दिल फरेब नाहरे में, तारीख़ निस्वा में, जो आज यहाँ पर भी वो दिन मनाया जाता है, जो जब ये औरतों का दिन होता है वो यहाँ पर वुमेन डे कितनी मार्च को होता है? 4 मार्च को तकरीबन किस दिन होता है, लेकिन वो यहाँ पर भी होता है। और इनको ये पता नहीं है कि वो क्या करवाना चाहते हैं। वो हमारे इस शरीफ और हयादार माशरे को बेहया और बेगैरत बनाना चाहते हैं। उनका असली टारगेट जो है वो मुसलमान है और कोई नहीं। उसके बाद 7वां नुक्ता, बॉयफ्रेंड जितनी मर्तबा वो बदलना चाहे, वहां की औरत जितनी मर्तबा, दिन में 4 मर्तबा 4 बदला बदल सकती, कोई उसको रोक नहीं, कोई ममानियत नहीं। 8वां नुक्ता, हम जिन्स परस्ती करना चाहे तो कर सकती है, इन्हें लड़की लड़के के साथ और लड़का लड़के के साथ करना चाहे तो वहां पर इजाजत है। और उस माशरे में ये ऐब नहीं माना जाता है, इसको ऐब नहीं माना जाता है। और ये है वो माशरा